ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂನ 18, 19, 20, 21 ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ, ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಸಚಿವ ಸಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜನರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. Serving as a lifeline for not just for our state, but also the neighboring states that depend on these vital waters. ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗೇಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮುನ್ನ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಫೋಟೋಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೊಪ್ಪಳದ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 19ನೇ ಗೇಟ್ ಕಿತ್ತೋದಾಗ, ಡ್ಯಾಂ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ಜನರು ಆತಂಕಪಟ್ಟಿದ್ರು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಭತ್ತದ ಕಣಜವನ್ನ ಉಳಿಸಿದೆ. ಅಜ್ಜಯ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ 33 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಾವು 19ನೇ ಗೇಟ್ ಒಡೆದೋದಾಗ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೀರಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಗೇಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನ ಭತ್ತದ ಕಣಜನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಉಡುಕ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಪವಾಡ, ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಕೃಪೆ, 33 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ 3 ರಾಜ್ಯದ ರೈತರುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಗವಂತ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. If everybody will agree, go for interlinking within 2-3 states, then national level also will take it up. I am having total confidence on central government under the leadership of Honorable Prime Minister. If at all anybody can do, that is only Narendra Modi can do. Linking of rivers from Ganga, Kaveri, one day it is going to happen. Always we can think only one state. We are all one. Either Karnataka, Andhra, Telangana, Tamil Nadu. We are all talking different languages, different cultures, but we are all one, that is Indians. So this concept we have to keep in mind, and also under the leadership of Honorable Water Resource Minister, we had a very good discussions today how to protect the farmers of Tungabhadra Dam, and also how to protect total farming community. Farmer is very, very important. We have to give water to them, then they will do wonders. With this, it is a historic meeting in South India. It is going to create one more history. All states, all rivers will be integrated. It is not far away. I am very happy to present today, and also I have seen
Shiv Kumar is very effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revant Reddy Garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. ಇನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಎ ಬಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ ವೈಶಾಖ. ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು, 6-7 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಬೇಲ್ ಪಡೆದು ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ವೈಶಾಖ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ಪುರಂನ ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆರೋಪಿತೆ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನ ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಪೊಲೀಸರು 47ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರು. 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 5 ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. उस टाइम की पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और उसके कारण कर्नाटक के इस क्षेत्र के लिए पानी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं. मुझे डीके शिव कुमार जी बता रहे थे कि हमें यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है इस एरिया को, क्योंकि तुंगभद्रा से आपको यहाँ पर पानी मिलता है. मगर एक दरवाज़ा टूटा, उसके कारण ये डैम के सभी दरवाजे बदलने की आवश्यकता हुई. सबको प्रॉब्लम हो रहा था, मगर तुंगभद्रा जो चेयरमैन हैं बोर्ड के, उन्होंने, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी और तीनों सरकार, कर्नाटक की सरकार, आंध्र की सरकार और तेलंगाना की सरकार, तीनों ने मिलकर पैसा लगाकर युद्ध के दौरान पे उसको तुरंत उसको काम पूरा किया और 33 दरवाजे आज बदल के ये डैम पुनः आपकी सेवा के लिए तैयार हो गया है. माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हर बार कहते हैं कि जल है तो कल है, मगर सिर्फ कहते नहीं हैं, उसके लिए काम भी करते हैं. उन्होंने नल से जल की योजना लाकर महिलाओं को जो दूर दरार तक पानी के लिए जाना पड़ता था, उनके घर में नल से जल की योजना बना दी. आज आपने देखा होगा कि स्वच्छता के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया और 12 करोड़ टॉयलेट इस देश में नए बन गए हैं. इसी तरह जल के लिए जो उन्होंने काम किया, पहला काम किया नर्मदा डैम के ऊपर. नर्मदा डैम पूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री थे जब भी नर्मदा डैम का पानी, सरदार सरोवर का पानी, उन्होंने पहले रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम किया. अहमदाबाद में साबरमती में पानी डाला. और जब रेवंत जी कह रहे थे कि पहले कच्छ के रण में पीने के लिए पानी नहीं था, पशुधन के लिए पानी नहीं था, आज सबसे ज़्यादा पानी गुजरात में कच्छ में भी अवेलेबल है. ये सरदार सरोवर को जोड़कर जो पानी वहाँ लेके गए उसके कारण हुआ है. जो अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो रिवर लिंकिंग के कार्यक्रम शुरू किए, उनको पता है कि हमारे देश में बारिश की कमी नहीं है, मगर हमारा प्लानिंग नहीं है. इसके कारण कहीं पर पानी से नुकसान होता है, कहीं पे पानी के बिना उसके कारण भी पुनः नुकसान हो जाता है. और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, केन बेतवा का 44,000 करोड़ की योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मंजूर कर दी.
यूपी और मध्य प्रदेश में 10,12,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। जो अभी बताया गया था माननीय चंद्रबाबू नायडू जी की ओर से कि पीकेसी की योजना बनी, पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये 3 में राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़कर ये जो तीनों नदियों को जोड़ा गया, 10 लाख हेक्टेयर और 50 लाख लोगों को पीने का पानी की व्यवस्था उसमें हो रही है। करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सैंक्शन किया है। आप देखिए हर जगह पर अंदर अंदर प्रॉब्लम चल रहे थे। हिमाचल और उत्तराखंड में किसाऊ का एक प्रोजेक्ट बनाना था, पावर भी जनरेट हो जाता, पानी भी मिल जाता, मगर कई सालों से ये काम नहीं हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के निर्देश से माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के अध्यक्षता में मीटिंग हुई और हिमाचल के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों की सहमति बन गई। अगले वीक में उनका MOU बन जाएगा, एक किसाऊ की योजना बनेगी तो राजस्थान और दिल्ली को भी पानी मिलेगा, वो पंजाब को भी पानी मिलेगा, हरियाणा को भी पानी मिलेगा। सबके पानी की प्यास उसके अंदर बुझने वाली है। एक दूसरी योजना थी हरियाणा और राजस्थान की, जो बारिश का सरप्लस वाटर जो राजस्थान को जाना था, करीब 38 साल से ये योजना आगे नहीं बढ़ रही थी। हमने अभी 2 दिन पहले दोनों मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की। हम सोमवार को माननीय श्री अमित भाई शाह साहब की अध्यक्षता में वो MOU साइन हो जाएगा और राजस्थान को भी पानी मिलने लगेगा। इसी बात को मैं इसके लिए आपको दोहराया कि आपको भी पानी चाहिए। मगर एक समय था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी स्टेट आपस में लड़ रहे थे। जो वो पानी का शेयरिंग उसके लिए बात हो नहीं रही थी, कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहा था। पर मुझे आज लगता है कि आप सबके उपस्थिति में आज अच्छा दिन लग रहा है। तीनों मुख्यमंत्री आज एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और तीनों ने कमिटमेंट किया है कि हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हम जो केंद्र सरकार की ओर से जो तय होगा, जो पहले से कुछ तय हुआ है, किसी को अन्याय ना हो, जो पानी देना है वो पानी सबको मिले, इस तरह की योजना बने, इसके लिए आज तीनों मुख्यमंत्रियों ने सहमति दी है। मैं DK शिव कुमार जी को, माननीय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी को भी और श्री A रेवंत जी को भी बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने देश के अंदर जो बदलाव आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में सड़क बनाकर सबको जोड़ रहे हैं, इसी तरह पानी की योजना बनाकर भी सबको जो जोड़ना चाहते हैं, इसके अंदर आपने आज कई कदम एक साथ तीनों ने मिलकर आगे बढ़ा है। इससे आप सबको भी पानी मिलेगा। पानी मिलेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पानी ज़्यादा मिलेगा तो आमदनी एक के बजाय 2 फसल ले पाएगा। अपने आप में इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज तुंगभद्रा डैम का जो दरवाज़ा, जो गेट रखने थे, वो तो लगा दिए गए हैं, मगर वहाँ सब सिल्टिंग हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास तो रिपोर्ट है कि पूरे देश में जो 6,500 डैम हैं, उस सभी में करीब 15% सिल्ट हो गया है। यानी कि उनके करीब 15% कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। और ये तुंगभद्रा डैम में भी 15% से भी ज़्यादा वो सिल्टिंग हो गया है। हमारे मंत्रालय में इसके लिए एक योजना बनी है। हमारे सेक्रेटरी VL कांताराव जी भी आज यहाँ पर है। हमने तीनों मुख्यमंत्री को भी कहा है कि डीसिल्टिंग के लिए हम लोग योजना बनाकर आपके सामने रखेंगे। काम तो तीनों मुख्यमंत्री को करना है, मगर जो निर्णय करना है, उनको जो टेक्निकल सहयोग करना है, वो हम जल्दी से करेंगे।
और तुंगभद्रा की पानी की कैपेसिटी करीब 25 से 30% और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं इसके लिए भी तीनों मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका पहला उदाहरण है, क्या 33 गेट लग गए, ये भी तीनों मुख्यमंत्रियों ने सहयोग किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आर्थिक सहयोग भी किया, इसी के कारण ये हो पाया है। तुंगभद्रा का डिसिल्टिंग भी ये तीनों मुख्यमंत्री के सहयोग के साथ बहुत जल्दी पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि नल है, नल से जल की योजना आपके गांव में अगर नहीं चल रही है तो आप आपके मुख्यमंत्री को बता दीजिए। आपको जो मोदी साहब कहता है कि जल है तो कल है, ये बात आप भी भली बात जानते हो। और इसीलिए जैसे नल से जल की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने योजना बनाई है एमकेड की। किसानों को अपने खेतों में उसको जितनी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का पानी चाहिए, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है। उसके अंदर कर्नाटक में भी 2 जगह पर 5-5 हज़ार हेक्टेयर का, आंध्र प्रदेश में भी 5-5 हज़ार हेक्टेयर के 2 प्रोजेक्ट और तेलंगाना में भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पूरे देश में 22 राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं कि 85% पानी वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अगर उनको एमकेड की योजना से वो ड्रिप से, स्प्रिंकलर से पानी यूज़ करेगा, उसको पाइप से पानी देंगे, पूरी क्वांटिटी में देंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ देंगे, तो किसान 2 बार फसल ले पाएगा। इतने ही पानी में वो 2 बार किसान फसल लेगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उसके जेब में पैसा आएगा, एक गांव भी समृद्ध होंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कह के गए थे। उन्होंने कहा था